How many vitamin B's are there? Vitamin B1, B3, B5, B6, B7, B9, B12. What's the name of vitamin B1? Thiamine. Source of thiamine? Do you know the source of thiamine? Olive. Olive is a good source of vitamin B1. Which rice? Polished or unpolished? Unpolished rice. Okay. So what do you know? What do you know about vitamin B1? What are the functions of vitamin B1? It's a cofactor for various enzymes. Do you know the enzymes? There is a mnemonic for it. It's called B-APT. B is branch chain amino acids. What are the branch chain amino acids? Valine, isoleucine and leucine. What is the disease that is maple syrup? Urine disease. You are clear about it? Okay. So B is done. Now A. Do you know what could be the A? Alpha keto ग्लूटारेट. ये कहां पे होता है? P. What is the P? Pyruvate. Pyruvate dehydrogenase. And T. Do you know what is T? Transketolase. Where do we find transketolase? HMP shunt. In the conversion to fructose 1,6-bisphosphate. Okay. So these are the uses of thiamine. Okay. Now there are diseases that are related to deficiency of thiamine. Do you know the diseases? Okay, we will come to that. Beriberi. How many types of beriberi diseases are there? Majorly two. Yeah, majorly two. Wet and dry. So, what is the symptom of wet beriberi? Edema, and the disease is cardiovascular disease. Symptom is edema and the disease related to is heart diseases, cardiovascular heart disease, most prominently right-sided cardiac failures. And dry beriberi? Neuropathy. Okay, one disease is done. Second disease? Wernicke's. It will followed by so where do we find those things, Wernicke's and Korsakoff's? In alcoholics. Okay. First, initially they will only have Wernicke's and then it will convert into Korsakoff. What are the symptoms of Wernicke's? Yeah, what is the symptom of Wernicke? Goa. Abul. Global confusion, ophthalmoplegia, ataxia. Clear?
ग्लोबल कन्फ्यूजन में साइकोसिस है। कॉर्साकॉफ में क्या होगा? अब बोल। हाँ, मतलब एमनेशिया होता है। और दिस इज कॉल्ड कॉन्फिटिबुलेशन। just get checked with the spelling. It's called confabulation. बेसिकली क्या होता है कि उन पेशेंट्स को ना वो लाइन फिलअप नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच इन शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज, दे विल से आई टीच कॉलेज शांति निकेतन, दे विल बी लाइक दिस, द पेशेंट्स विल बी लाइक दिस। इतना क्लियर है? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? Supplement of thiamine. Specifically for Wernicke's, we also need to give dextrose. Okay? Dextrose is a saline form, sugar-based saline form. Treatment is supplementation. Thiamine. Now vitamin B2. What's the name of vitamin B2? Where do you get riboflavin from? Dairy product is one. Chickpeas. Yeah, we also get them from cereals. ठीक है? Now, do you know the diseases related with vitamin B2 deficiency? Very good. What are those? And dermatitis. Or okay, that day I was talking about cornea. Cornea a part of our eye जिसमें blood circulation नहीं होता है. It's a vascular system. Correct? What will happen in riboflavin deficiency? It will develop neovascularization, formation of extra blood vessels in a avascular position. Or anywhere. Neovascularization is formation of blood vessels, extra blood vessels where they should not be present. Okay? Cornea में neovascularization हो जाता है. Clear? And one more important thing is there, magenta tongue. The tongue color, it gets magenta colored. Clear? Now vitamin B3, what's the name of vitamin B3? Niacin. Where do you get niacin from? Meat and polyester, no. Cereals, yeah, we also get niacin. From cereal we will almost, we will get every kind of vitamins. Meat is a primary example, okay? Okay, so what are the diseases related to niacin deficiency? Castle's necklace, pellagra. Basically क्या होता है? Suppose ये human face है, ये उसका neck है. This kind of thickening of skin happens. Okay, जो skin होता है वो necklace की तरह thickening हो जाता है. It's like a necklace. That's why it's called Castle's necklace. It happens in niacin's deficiency. और क्या होगा? The classic 3Ds: diarrhea, dementia, dermatitis, and finally death. These are the classic 3Ds which will follow death. Okay?
नाउ इसमें एक कॉन्सेप्ट समझो, नियासिन किससे डेवलप होता है? ट्रिप्टोफैन। 60 mg tryptophan is needed to get 1 mg of niacin. What are the cofactors, do you know? B2 and B6. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है? 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 3 2 6। ठीक है, अब देखो, अगर ट्रिप्टोफैन की डिफिशियंसी रहेगी तो अल्टीमेटली नियासिन की भी डिफिशियंसी होगी। इससे और क्या क्या मिलता है हमें ट्रिप्टोफैन से? ट्रिप्टोफैन से और क्या क्या डिराइव होता है नियासिन को छोड़ के? ठीक है, इतना क्लियर है? सेरोटोनिन का ओवर सिक्रीशन किस में हो जाता है? Do you know about Hartnup disease? Hartnup disease. What is the taste for Hartnup disease? Overmeyer taste. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। आइसोनियाजिड एक ड्रग है, किसमें यूज करते हैं पता है किसी को? आइसोनियाजिड टीबी और ओसीपीस, they will inhibit B6, so they will also affect niacin production from tryptophan. ठीक है, डेफिशिएंसी क्लियर हो गया, डिजीजेस क्लियर हो गए, कैसे हो रहा है ये क्लियर है? वेरी गुड। नाउ B5, व्हाट इज द नेम ऑफ B5? अच्छा, व्हाट, वेयर इज B4? Where is B4? Vitamin B4. Where is B4? What is the name of vitamin B4? What is the name of vitamin B4? Name of vitamin B4. Vitamin B4. What is the name of vitamin B4? होता ही नहीं है vitamin B4. ठीक है? Now we will come to vitamin B5. What is the name of vitamin B5? Pentathanoic acid. Where do we get pentathanoic acid? Source of pentathanoic acid? एक फ्रूट आता है ग्रीन कलर का, थोड़ा सा महंगा फ्रूट है, और एवोकाडो। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ पेंटाथेनोइक एसिड। ओके, इसके डिजीजेस पता है किसी को? क्लिनिकली बहुत कॉमन होता है, बर्निंग फिट। अच्छा, इसको ऐसे याद कर सकते हो, पैंट फिट, बर्निंग फिट, अगर याद ना रहता है किसी को तो। ठीक है, और क्या एग्जांपल्स है? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, क्या नाम है उसका? उसका दूसरा नाम क्या है सुपररेनल का? एड्रिनल इनसफिशिएंसी। दैट मीन्स अगर B5 का डिफिशियंसी होगा तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ठीक से सिक्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? रिवाइज इट। B6, what is the name of B6? Pyridoxine. What are the uses of pyridoxine? What is the most important use of pyridoxine? उदय, न्यूरोलॉजिस्ट कितनों को बनना है आगे जाके? न्यूरोलॉजिस्ट। Pyridoxine is a neuroprotector.
बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, आइसोनियाजिड इज वन ऑफ देम, दोज हु कॉज न्यूरोपैथीज, ठीक है। टू कंट्रोल ऑल दोस न्यूरोपैथीज वी प्रिस्क्राइब पायरोडॉक्सिन, ओके। कैन यू नेम ए डिजीज रिलेटेड टू न्यूरो वेयर पायरोडॉक्सिन इज यूज्ड? बहुत कॉमन डिजीज है, सीजर, ठीक है, सीजर्स। उसमें क्या आते हैं, वो कॉन्वल्शंस वगैरह आते हैं, हाइपर न्यूरो एक्टिविटी हो जाती है, स्पेशली रिफ्रैक्टरी सीजर। यू विल रीड अबाउट इट व्हेन यू विल गो टू मेडिसिन और फार्मा में भी पढ़ लोगे। हियर वी यूज पायरोडॉक्सिन एज प्रोफाइलेक्सिस, ओके। सम मोर यूजेस ऑफ पायरोडॉक्सिन, it acts as a cofactor for, give an example, heme synthesis और decarboxylation, transamination. Examples of decarboxylation, one of them is this, फॉर्मेशन ऑफ गामा कार्बन। गावा में यूज होता है पायरोडॉक्सिन का, गावा फॉर्मेशन में यूज होता है। क्या बोल रहा था? अच्छा हाँ, ग्लूटामेट से गावा। और डोपा से डोपामीन में पायरोडॉक्सिन, हाँ। और कैटेकोलामाइंस। तो इससे क्या पता चल रहा है, सारे टायरोसिन के बाई प्रोडक्ट्स है। ऑल दोज आर टायरोसिन बाई प्रोडक्ट्स, राइट। डोपामीन, कैटेकोलामाइंस, मेलाटोनिन, टायरोसिन क्या है कि नहीं, या ट्रिप्टोफैन क्या है? टायरोसिन के ही है ना। ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव्स क्या होता है? दो अलग अलग ग्रुप है, वन इज टायरोसिन ग्रुप, अनदर इज ट्रिप्टोफैन ग्रुप, ठीक है। और क्या आएगा एग्जांपल्स में? कॉमन एग्जांपल्स बताओ जो आपने ग्लाइकोलाइसिस इन सब चीजों में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है। DEH ये क्या होता है? DEH क्या होता है? डिहाइड्रोजनेज ही होता है ना। एक हिंट तो मिल गया, आगे का बोलो। एंजाइम होगा डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट से ऑक्सालो एसीटेट कन्वर्ट किस एंजाइम के थ्रू होता है? कार्बोक्सिलेज या डिहाइड्रोजनेज? हाँ, पायरुवेट से ऑक्सालो एसीटेट में एंजाइम क्या होगा? एंजाइम पायरुवेट से ऑक्सालो एसीटेट, और क्या होगा एंजाइम? पायरुवेट से ऑक्सालो एसीटेट। ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ा होगा ना। चलो दो ऑप्शंस दे रहा हूं, एक ये डिहाइड्रोजनेज, दूसरा कार्बोक्सिलेज। क्या होगा? इट्स रियली इजी टू कंफ्यूज यू। कार्बोक्सिलेज ही होता है, कार्बोक्सिलेज ही होता है। मेलोनाइल कोए से सक्सिनेल कोए किस चीज से फॉर्मेशन हो रहा था? प्रोपेनल कोए से मिथ मेलोनाइल कोए किस चीज से फॉर्मेशन हो रहा था? प्रोपेनल कोए कार्बोक्सिलेज से हो रहा था ना। एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए किससे कन्वर्ट हो रहा था? एसिटाइल कोए। अब ये चीज कभी मत भूलना,
जितने कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है सब में कोफैक्टर B6 रहेगा, ठीक है, एक्सेप्ट वन, वो मैं बताऊंगा। तो एग्जांपल्स क्या क्या बन गए? पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, प्रोपेनल कोए से मेथ मैलोनाइल कोए, प्रोपेनल कोए कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोए से मैलोनाइल कोए, एसिटाइल कार्बोक्सिलेज। अब एक बच रहा है, वो भी याद कर लो, गामा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज, गामा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज, इसका कोफैक्टर विटामिन के होता है। ये एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सारा विल बी फंडेड बाय विटामिन B6, और कोई इन्वेस्टर नहीं है इस पे। आप लोगों को ये पता है क्या डिफरेंस डी हाइड्रोजिनेज, डी कार्बोक्सिलेज, इनका मीनिंग पता है? व्हाट इज डी हाइड्रोजिनेज? डी हाइड्रोजिनेज बेसिक डेफिनेशन, और बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब क्या हो रहा है, H+ को निकाल रहे हैं, डी हाइड्रोजिनेज, और डी कार्बोक्सिलेज कार्बन के बॉन्ड को, मतलब कार्बन को निकाल रहे हैं। तो इसमें कन्वर्शन में हर एक में ही तो कार्बन निकल रहा है ना, इधर हाइड्रोजन का क्या रोल है? समझ गए? अब कंफ्यूज मत होना इस चीज में। तो B6 के सारे फंक्शंस याद हो गए? हो गए? एक हो गया आपका हीम, एला सिंथेटेज, दूसरा सारे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तीसरा न्यूरोप्रोटेक्शन, ठीक है? क्लियर? सबको क्लियर हुआ? बेटा आपको क्लियर है ये चीज? नाउ अच्छा, इसका सोर्स क्या है B6 का, पैराडॉक्सिन का? फिर सीरियल्स। ऑलिव मिल्क क्या होता है? ऑर्गन मीट, ओके। और समोसों में क्या डलता है? आलू, पोटैटो, ओके। चिकपी, चिकपी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर डेफिशिएंसी रहा B6 का तो डिजीजेस क्या क्या होगा? न्यूरोपैथी और एनीमिया। कौन सा? नहीं, वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट कौन सा है, टाइप नहीं पूछ रहा हूं, नाम क्या होता है? जैसे वेरिएंट में हो गया ना आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, वैसे कौन सा एनीमिया? वो टाइप है, मेगालोब्लास्टिक नहीं होता है, एस से नाम है उसका, सिडरोब्लास्टिक। सिडरोब्लास्टिक में क्या होता है बेसिकली? सेल्स में आयरन के डिपोजिशंस बढ़ जाते हैं, आयरन के डिपोजिशंस बढ़ जा रहे हैं। हीम सिंथेसिस में क्या हो रहा था? आयरन वाज कन्वर्टेड एंड इट वाज ट्रांसफर्ड इनटू द आरबीसीज। हीम सिंथेसिस में पूरा यही है ना। तो क्या हो रहा है, इधर आयरन का वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आयरन स्टोर हो जाता है, ठीक है? और सिडरोब्लास्टिक माइक्रोसाइटिक होता है। क्लियर? ओके, नाउ B7. What is the name of B7? Where do we get biotin from? और लीवर, एनिमल लीवर जो खाते हैं
दे विल हैव गुड अमाउंट ऑफ बायोटिन। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसके डिजीजेस पता है, बायोटिन डेफिशिएंसी के डिजीजेस? और और क्या बोल रहा था ये? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मेनली दो ही के लिए होता है, पेंटाथेनिक और तुम्हारा B6 पैराडॉक्सिन। और किसमें होता है? हेयर लॉस, एलोपेशिया। और पता है हैलुसिनेशन, वो न्यूरोपैथी में चला जाएगा बेटा। पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी के कारण होता है, क्योंकि वो गाबा वाला वो फैक्टर आ जाता है। क्या नहीं होगा? और अच्छा, एक्सेस एग खाने से क्या होगा सरवर आदिल? अंडा थर्मोजेनिक इफेक्ट। इसके साथ बायोटिन का क्या रिलेशन है? रॉ एग ज्यादा खाने से क्या होगा? क्यों पता है? एविडिन। रॉ एग में एक कंपोनेंट रहता है एविडिन, वो बायोटिन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। ये इसका क्लिनिकल कोरिलेशन है। सिम्टम्स जितने सारे बोले हो वही है, स्केली स्किन, एलोपेशिया, डर्मेटाइटिस, यही सारे सिम्टम्स है इसके। बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? B9, व्हाट इज द नेम ऑफ B9? Where do we get folic acid from? और मीट और साइट्रिक फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स। ठीक है? और ये कौन सा होता है? B12, 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 B12 का नाम नहीं पता? इन दोनों के डेफिशिएंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है? इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब वेरिएंट कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? ये एनीमिया मैक्रो होता है ना। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के फीचर्स क्या होते हैं? होता क्या है? साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। और कलर क्या होगा? रेड ब्लड सेल का कलर क्या होगा? हाइपरक्रोमिक नहीं होता है क्या? किसी एनीमिया में होता है हाइपरक्रोमिक? हाइपरक्रोमिक होता है किसी में? होता है हाइपरक्रोमिक? नहीं होता है। कलर डिफरेंस दो ही होते हैं, या तो कम हो जाएगा या तो नॉर्मल रहेगा। मेगालो में क्या होगा? नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है? ओके। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा फॉलिक एसिड का? फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? किस पार्ट में? दीक्षित, किस पार्ट में होगा एब्जॉर्प्शन? जेजुनम में ही होता है। और कोबलामाइन का किस में होता है? आयरन का किस में होता है?
ये तीन भाई है ना, आयरन, B9 और B12, तो क्या क्या होगा? इलियम में किसका होगा? तीन ही तो पार्ट हो गए। इलियम का होता है कोबलामाइन में, इलियम का होगा कोबलामाइन का होगा इलियम में, जेजुनम में होगा फॉलिक एसिड का, आयरन का होगा, क्लियर? अच्छा, फॉलेट ट्रैप पता है सबको, फॉलेट ट्रैप, चलो ठीक है, इतना तक क्लियर है। मार्फानॉइड सिंड्रोम या फिर मार्फानॉइड हैबिटस, डू यू नो अबाउट इट? डू यू नो अबाउट इट? मार्फानॉइड हैबिटस, इन दोनों के ही डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फिंगर्स होते हैं वो सारे लंबे हो जाते हैं, लाइक स्पाइडर, इसको स्पाइडर वेब डिजीज भी बोलते हैं। लंबे लंबे फिंगर्स, लंबा हाइट, मुंह लंबा, ठीक है। इतना तक क्लियर है? क्लियर है?